नमस्ते सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਸੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਨਿਟ 5 ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। 3 masses of 1 kg 2 kg 5 kg, 3 masses ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ 1 ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। 3 ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 kg 2 kg 5 kg। ਆਰ ਪਿਕ ਡੈਟ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਹੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮਾਸਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ 1 kg, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ origin ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਚਾਹੇ 5 ਗਿਵਨ ਹੈ 6 ਗਿਵਨ ਹੈ 7 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ origin ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਣਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ 2 kg ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਮਾਸ 5 kg ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ठीक है जी, तीनों मास प्लेस करते मैंने। ठीक है, हुण अपन ने सेंटर ऑफ मास कढना है। क्वेश्चन तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ सेंटर ऑफ मास कित्थे लाया करूंगा, जिधर हैवी है। नीचे वाली साइड का 1 kg है 2 kg है, ये 1 kg है 2 kg है, ऊपर 5 kg है। हुण तुहानू दसना है सेंटर ऑफ मास कित्थे लाया करूंगा, एकदम कमेंट करके दसो। सेंटर ऑफ मास नीचे लाया करूंगा कि ऊपर लाया करूंगा। इस लाइन तो सेंटर ऑफ मास नीचे लाया करूँ कि ऊपर, तुसी कमेंट करके दसना। हुणे दसो कमेंट करके कित्थे लाया करूँगा। देखो मेरा गला खराब होने के बावजूद पढ़ा रहा, एक कमेंट करन च तां तुहाडा कुछ नहीं जा रहा ना, कमेंट करके दसो। आई होप सारे ने दसता होगा कि सेंटर ऑफ मास ऊपर लाया करूँगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कित्थे लाया करदा है, हैवीयर पार्ट करनी। हुण आपां फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास कड्ढण दा फार्मूला की सीगा कि m1r1 m2r2 plus m3r3 upon m1 plus m2 plus m3। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ। ਮਾਸਿਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮਾਸਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ m1 m2 m3 ਗਿਵਨ ਹੈ, r1 r2 r3 ਕੱਢਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ r1 ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। फर्स्ट बॉडी वास्ते तो r1 0 है। क्यों सर जी, क्योंकि ओरिजिन के उत्ते तो कोऑर्डिनेट्स 0,0 हुंदे, कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन दे तो 0,0 हुंदे। तो फर्स्ट बॉडी के वास्ते मास की वैल्यू 1 kg है, मास की वैल्यू 1 kg है, तो कोऑर्डिनेट्स की है 0,0, यानी कि 0 आए क्या ते 0 जे क्या, ये तो बोल सकता है ना जी। सैकेंड बॉडी की गल करिए तो सैकेंड बॉडी वास्ते हुण देखो पॉइंट एक्स एक्सिस ते पे है। कोई भी पॉइंट, मैथ बायो वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, तुसी बस इतना समझ लो एक्स एक्सिस दे उत्ते पॉइंट पे है तो इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स x, 0 होंगे। 10th क्लास सर 10th क्लास तो असं किसी होर ही काम सीगे यार। 10th क्लास रिमेंबर करो कि x एक्सिस दे उत्ते पॉइंट पे है तो एक गल बन लो, जो भी कोई पॉइंट x एक्सिस से पे है तो x का तो कोई कोऑर्डिनेट होगा पर y 0 होगा। y दे कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि इत्थे पे इत्थे y दे कोऑर्डिनेट 0 सी,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ y ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ x ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ। x ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1,0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1,0। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, दोबारा देख लो 10 सेकंड पीछे जाके, इतना कंफ्यूज ना हो। तो x का अपना कितना सी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 आई कैप है, ते j अपना 0 j कैप है, क्योंकि o की अपना मतलब x एक्सिस पे लाई करे तो पॉइंट की वैल्यू 0 है, तो 0 j कैप। थर्ड बॉडी का कितना कैलकुलेट करिए? थर्ड बॉडी ਹੁਣ थर्ड बॉडी देखो ऊपर पई है, ऊपर कितने से पई है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप इतना बोल सकते हैं कि ये इतना अध होगा इत्थों दे जो कोई लाइन कट रहा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ए लेंथ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁੱਟਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੂਗੀ, ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। एक सेकंड आ पॉइंट ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ x ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੈ ਨਾ y ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੋਊਗਾ। हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। आहा कितना गिवन है? बेस। ये पूरा एक सी, इनका अर्ध कितना होगा? हाफ, यानी कि बेस अपना हाफ इन द स्क्वायर माइनस आहा परपेंडिकुलर प्लस हुंदा ना परपेंडिकुलर द स्क्वायर। आ परपेंडिकुलर है, इनु कढना है ना परपेंडिकुलर द स्क्वायर कढना है। इनु इधर ले आओ, 1 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर। कैलकुलेट करो इनु भाई, तो जेनु कैलकुलेट करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਆਊਗੀ। परपेंडिकुलर ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਆਊਗੀ। कैलकुलेट कर लो, इधर आऊगा एलसीएम लाओ, एलसीएम नीचे 4 आऊगा, ऊपर आऊगा 4 - 1 यानी कि 3/4 है ना। फिर जो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ √ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ √3/2 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर, यानी कि इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। तो मैं इतना बोल सकता 5 का बाहर रहूगा मास। हाँ हुन ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ? y एक्सिस ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ। y एक्सिस ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ √3/2 j कैप। हुन i की कोऑर्डिनेट्स आएंगी, यानी कि x एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स आएंगी। ऊपर गए, ऊपर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a आ गया, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਰੇ ਹੋ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੂਰਾ 1 ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 1/2। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ i ਦਾ ਆਪਣਾ? 1/2 i ਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ y ਐਕਸਿਸ ਕੱਢ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਧ, क्योंकि इस लाइन ने ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਚ ਤੋੜਤਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਫ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਫ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ डिस्टेंस कितना है? हाफ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਏਗਾ। नहीं समझ आए दोबारा देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। बस ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ जस्ट ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ करना है, पुट कर दो भाई, पुट करना रह गया ਹੁਣ ਤਾਂ। m1 कितना गिवन है? इन्हों में डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो 0 आई क्या प्लस 0 j क्या प्लस 2 आई क्या प्लस 0 j क्या प्लस 5/2 आई क्या प्लस 15 नहीं आ रहा 5 √3/2 j क्या, ठीक है जी। अपॉन मासेस ऐड करो 8 आऊगा, ठीक है जी। ये सारे एडजस्टमेंट्स सॉल्व कीते, सॉल्व करने तो बात करो भाई आई कैप वाली रकम जोड़ो। पहला तो आई कैप वाली रकम जोड़ोगे तो 2 एलसीएम आ गया, इथे 1 है 2 दूना 2 4 आई कैप प्लस 5 आई कैप प्लस इथे भी अपना जे वाली रकम जोड़नी है, आ वाली जे कली आही जे अपने को
तो इतने बस लिख दो 5√3/2 5√3/2 इतने प्लस है, ठीक है, मैं दोनों अपॉन 8 इतने छड़ दो, मुकदा कुछ नहीं किया, जस्ट आई वाली रकम जोड़ी है, जे वाली रकम जोड़ी है, एलसीएम लगता है, कंफ्यूज नहीं होना, एलसीएम लेके रकम जोड़ी है, नीचे 8 होगी, इतनी छड़ के आ जाओ, तो सही बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। न्यूमेरिकल बहुत सौखा सी ते जानबूझ के न्यूमेरिकल करवाया, बहुत जल्द पता लग जाओ क्यों करवाया न्यूमेरिकल, ठीक है, हिंट बहुत देंगे। हुण आपां चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपने को आउंदा गा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखो यार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सौखी चीज है, समझना बहुत सौखा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन लिखो, तुसी लिखनी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of the radius, ठीक है जी, सिंपल। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जिन्हों ਅਸੀਂ आई ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर देगी। सर जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है, सिंपल भाषा ਵਿੱਚ यार इदा मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक थ्रेड है, रस्सी, एक तो है 5 सेंटीमीटर की रस्सी, एक है 50 सेंटीमीटर की रस्सी। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गोल गोल घुमाना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ऑब्जेक्ट लगे 5 सेंटीमीटर की रस्सी ਨਾਲ एक 50, ਕਿਹਨੂੰ घुमाना सौखा है, 5 सेंटीमीटर की रस्सी ਨੂੰ कि 50 सेंटीमीटर की रस्सी ਨੂੰ? ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर की रस्सी ਨੂੰ घुमाना सौखा ਤੇ 50 सेंटीमीटर की रस्सी ਨੂੰ घुमाना औखा। ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, मतलब रोकना क्यों सौखा है? ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर की रस्सी सौखा रोक लोगे, 5 सेंटीमीटर की रस्सी 50 सेंटीमीटर की रस्सी औखा रोकांगे। तो मैं इदा भी बोल सकता कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मास के ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल रेडियस के। पढ़ियो क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर की रस्सी घुमाना भी औखा है, ਉਹ सॉरी 50 सेंटीमीटर की रस्सी घुमाना भी औखा है, मास वध रहा, इनर्शिया भी वध रहा। इनर्शिया की है किसी भी चीज़ की यार, किसी भी मतलब इफेक्ट ਨੂੰ मना करना। इनर्शिया सिंपल भाषा में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आए हुए हैं कि कोई चीज़ रेस्ट से तो रेस्ट से रहूगी, कोई चीज़ मोशन है तो मोशन च रहूगी, या फिर तुम इदा बोल लो किसी भी चेंज को लियान तो रेजिस्ट करना उन्हें इनर्शिया बोलते हैं। तो मास नाल इनर्शिया बढ़ता है तो रेडियस नाल भी इनर्शिया बढ़ता है, ठीक है जी। हुण आपां गल करदे आइए, एक मिनट में मार्कर लग रहा है, चलो हाँ जी। तो आपां ने तुहानूं दस्सिया सी इनर्शिया की डेफिनेशन कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास। इनर्शिया का की हुंदा है प्रोडक्ट ऑफ मास ते रेडियस दे स्क्वायर। हुण ना एक छोटा जिहा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इनर्शिया ते टॉर्क, ठीक है जी। ये रिलेशन है बिटवीन इनर्शिया ते टॉर्क। सब तो पहला तो यार कोई भी बॉडी मान लो, कोई बॉडी मान लो सपोज क्लास विच ना मैं इधर डायग्राम बनाई लाइव क्लास च, बच्चे बोल रहे सर अमीबा ड्रॉ करता। अमीबा नहीं है मूर्खों, ये जस्ट एक डायग्राम है। इनका सेंटर ऑफ मास मान लो विचों लाई कर रहे, इत्थों लाई कर रहे, कोई ऑब्जेक्ट इत्थे पे है, कोई ऑब्जेक्ट इत्थे पे है, कोई इत्थे पे है, इत्थों दी सेंटर ऑफ मास मान लो इत्थे 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 m1 है, आ रेडियस r1 है, इत्थे m2 है, आ रेडियस r2 है, ये रेडियस r3 है, m3 है, ठीक है जी। टॉर्क का दे बराबर सी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। का पहला टॉर्क आप इदा बोल रही है, फर्स्ट बॉडी का टॉर्क का दे बराबर होगा F1 इनटू r1,
F1 इंटू R1 इतना बोल सकते हो। फिर टॉर्क की ਹੁੰਦਾ है फोर्स इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। एक्चुअली फोर्स ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 डिग्री नहीं बन रहा टॉर्क, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन थीटा ਹੁੰਦਾ है साइन 90 कितना ਹੁੰਦਾ है 1, तो टॉर्क बन गया F1 इंटू R1। ਹੁਣ फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। ठीक है, जस्ट फोर्स की जगह पे मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता, वो भी टॉर्क 2 F2 इंटू R2 बराबर है M2 इंटू A2 इंटू R2। टॉर्क 3 है F3 इंटू R3 इंटू बराबर है M3 R3 A3। हुण ना दो फॉर्मूले आंदे जिहड़े तुहानूं पता होण इस चैप्टर ते। वेलोसिटी हुंदी है R ओमेगा ते एक्सेलरेशन हुंदा है R अल्फा। हुण ना देखो यार चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, वैसे जेई वगैरह दे विच असीं रोटेशनल मोशन बोलते हैं ना, तां जिहड़ी v है अपनी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब जो कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहा है, इस सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स उत्थे आपां v ते a नु पढ़दे हां। v नु आपां कल्ली वेलोसिटी नहीं बोलांगे, इहनु आपां लीनियर वेलोसिटी बोलांगे, जिवें लीनियर मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी। सेम एक्सेलरेशन नहीं है, कल्ली लीनियर एक्सेलरेशन है। चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन दे विच जिवें तुसीं फर्स्ट लेक्चर अटेंड करके आए हो तो आपां कीती सी गल की बोलदे हो ओमेगा दी। ओमेगा की सी अपनी एंगुलर वेलोसिटी। सेम अल्फा की है इत्थे एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी। जो कोई पार्टिकल एक रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन च सर्कुलर मोशन च, तो उस पार्टिकल दे लई उनदी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाउंदी है। कोई पार्टिकल अगेन सर्कल च है तो उनदे लिए उनदी एक्सेलरेशन अल्फा है, उनदे लिए एक्सेलरेशन अल्फा है, तो उन्हें आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। दो फार्मूले तो हमें पता हो, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਮੈंने। ठीक है जी, डायग्राम ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਸਮਝ ਜਿਓ ਬਸ। ठीक है जी, ठीक है, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। फॉर्मूले हुण देखो एक्सेलरेशन की जगह पे तुसी R रखना है, R अल्फा वगैरह, ठीक है रखिए। तो टॉर्क 1 बराबर है M1, एक्सेलरेशन की जगह पे R रखता R1 अल्फा 1 इंटू R1। दो बार R मल्टीप्लाई च आ गया तो इन्हों आप इदा बोल सकते हैं M1 R1 का स्क्वायर ते अल्फा। जिवें ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ओमेगा नहीं बदलता सी, मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ओमेगा ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ 1 ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, जिन्होंने लगाया लेक्चर वही समझे, जिन्होंने नहीं लगाया मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करने वाला। प्लीज़ लेक्चर 1 अटेंड करके आओ, ताई फायदा है इत्थे बैठन दा। मेरा खुद का गला बहुत खराब है, मेरे नाल कोऑपरेट करो। मैं तुहाडी पीडीएफ्स दे विच इन्ना उलझिया होया ना, इधरों तुहाडे लेक्चरां विच बस मैनूं पता नहीं किवें इत्थे खड़ा तुहाडे सामने। M2 R2 ओमेगा अल्फा सेम रहूगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कोई चेंज नहीं है। R2 तो M2 R2 the square alpha, torque 3 M3 R3 alpha R3 तो M3 R3 alpha। इतना करते करते अपने को मान लो नेट टॉर्क N आ गया था MN RN alpha RN तक की बराबर आ गया MN RN alpha square। ठीक है जी, ठीक है। हुण अपने को अलग अलग टॉर्क आ गए सर, ये पहली बॉडी का टॉर्क है, थर्ड मान लो किन्नियां मर्जियां बॉडी n बॉडीज है तो n बॉडीज वास्ते n आ गया। हुण सर जी टॉर्क्स तो इन्ने सारे आ गए तुहाडे कोल,
ਹੁਣ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ बोल लो। टोटल टॉर्क की होगा, इन सारे टॉर्क्स को ऐड करिए, ऐड कर दो भाई। इतना मैं डायग्राम भी गलत जगह पे लिखती, सब कुछ गलत जगह पे करता। एक तरह से ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क कादे बराबर आऊगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 अप टू n टॉर्क बराबर है टोटल टॉर्क दे। ठीक है जी। टॉर्क 1 कितना आया सी, ए वाला टॉर्क की गल चल रही है हुन ए वाले टॉर्क्स की गल चलूगी। m1 किन्ने, r1 दा स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 दा स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 दा स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट अगे अपने को नेट टॉर्क। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो कुछ कॉमन है, देखो कॉमन है कुछ। सर जी साहब तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, अखा खोल के देखो, कानू मेरे तो बेइज्जती कराओगे। जल्दी दसो की दिख रहा है कॉमन, अल्फा कॉमन ही दिख रहा है, अल्फा कॉमन ही दिख रहा, कॉमन काट दो बस, सारा कुछ हो गया। की बच गया, m1 r1 द स्क्वायर प्लस m2 r2 द स्क्वायर प्लस m3 r3 द स्क्वायर एंड सो ऑन बराबर है टोटल टॉर्क दे। हुण दसो की होगा, m1 r1 द स्क्वायर की हुंदा है, इनर्शिया नहीं हुंदा। इनर्शिया की सी m into r द स्क्वायर, इनर्शिया की m into r द स्क्वायर। तो आप इधर बोल सकते हैं अल्फा कॉमन i1 प्लस i2 प्लस i3 सो ऑन बराबर है टोटल टॉर्क। यार मार्कर मतलब बोर्ड पे समझाने अलग ही मजा आ रहा है, लाइक लिख रहे हैं ना बोर्ड में ज्यादा बढ़िया लग रहा है मार्कर ना लेंगे। बस हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आप इधर बोल दिए आ सारा टोटल इनर्शिया है, यानी कि अल्फा इनटू इनर्शिया कादे बराबर है टॉर्क दी, अल्फा इनटू इनर्शिया कादे बराबर है टॉर्क दी। ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ, रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड टॉर्क, यानी कि आप रिलेशन कटना सी इनर्शिया ते टॉर्क दा। टॉर्क भी आ गया, इनर्शिया भी आ गया, अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन, गल खत्म। इत्थे ਤੁਹਾਡੀ डेरिवेशन कंप्लीट होती, बड़ी वधिया डेरिवेशन है, सौखी। इदां दी अगे 3 डेरिवेशंस होर है। तुसीं कहोगे सर जी की डेरिवेशन आ, इन्हां नूं कोई डेरिवेशन भी नहीं आप कंसीडर कर सकते। ठीक है जी, सौखी चीज़ है ना, मजा आ रहा है। इधर मेरा गला खराब हो रहा है, तुहानूं मजा आ रहा है तो भाई मैं थोड़ी पीडीएफ दसदा भी, मतलब पीडीएफ ਅਸੀਂ इदा बना रहे हैं ना कि थोड़ा पीडीएफ गल्ला मारूंगी, तुम इदा समझोगे, बड़ा मजा। कल की वीडियो देखो, मतलब नहीं यार जिस दिन ये वीडियो जाऊगी उस दिन दूसरी वीडियो भी आऊगी, है ना। चलो देखते हैं। तो जल्द तो जल्द थोड़ा लेक्चर खत्म कर दिया, पहले मेरा लेक्चर खत्म कर दो। नेक्स्ट अपने को आऊंगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एस इनर्शिया। देखो ये दो फार्मूले पढ़ाए सी, एक फार्मूला तो पढ़ाया सी मैंने वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा, एक एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा। एक्सेलरेशन का कर लिया, हुन वेलोसिटी का कर दिया। ठीक है जी, सेम डायग्राम दोबारा बना लो, वही डायग्राम है यार। देखो पढ़ते हैं समझते हैं, पर मैं थोड़ा कोई गल करने लगा सी, फिर मैं चुप कर गया। मैं पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब तो कोई टाइम थोड़ा है। पेपर आ चुके हैं सिर पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दसो। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की होगी हाफ एम v1 द स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी सेकंड की हाफ एम v2 द स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी थर्ड की हाफ एम v3 द स्क्वायर। इदां ही काइनेटिक एनर्जी n पार्टिकल्स की होगी हाफ एम, इतने 1 2 3 भी पाओ गई
वी एम एस। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हुण की करिए सर जी, हुण की करिए, हुण की करिए, दसो भी की करना अगे, दसो। चुप करके वेलोसिटी की जगह पे आर रख दिए, आर ओमेगा रख के देख लेने, नहीं आंसर आया कोई गल नहीं। हाफ एम वन वेलोसिटी की जगह पे आर रखता, आर ओमेगा, तो आर वन का स्क्वायर ते ओमेगा का स्क्वायर। सर जी ओमेगा आ गया, ओमेगा तो सेम रहता हर बार, तो उनके ओमेगा 1 या 2 तो पाना नहीं, ओमेगा तो सेम है क्योंकि पहले लेक्चर से बच्चे समझ के आए, तो बस सारे कितने ओमेगा सेम रख दे जाए। ज्यादा ही ओवर एक्ट हो गया ना, पर कोई गल नहीं, चलता है। मैं भी जवाब है तो वांग थोड़ा तो इन्ना कर लिया करो एडजस्ट। टोटल काइनेटिक एनर्जी की होगी, नेट काइनेटिक एनर्जी की होगी, नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी की होगी सारी काइनेटिक एनर्जी का जोड़, नेट काइनेटिक एनर्जी की होगी सारी काइनेटिक एनर्जी का जोड़, ऐड कर दो हाफ एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, नेट काइनेटिक से सारी काइनेटिक एनर्जी ऐड करती। अगला स्टेप दसो भाई की होगा, कॉमन की कुछ दिख रहे, कॉमन कट के बस बाहर ले जाओ, आंसर आ गया। हाफ कॉमन निकल गया, ओमेगा कॉमन निकल गया, m1 r1 द स्क्वायर m2 r2 द स्क्वायर प्लस m3 r3 द स्क्वायर सो ऑन। बस हाफ ओमेगा m1 r1 द स्क्वायर मास इनटू रेडियस द स्क्वायर की बराबर ਹੁੰਦਾ इनर्शिया दे। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ ओमेगा स्क्वायर इनर्शिया। ठीक है जी, बड़ी बोरिंग जी चीज़ा हो रही हले तो, इदा ही 2-3 रिलेशन हो रहे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ਤੇ ਇੱਕ टॉपिक हो रहा है, फिर खत्म चैप्टर। ठीक है, यूनिट 1 ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, यूनिट 5 ਔਖੀ ਹੈ। हाँ जेई लेवल ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ यूनिट है, नो डाउट, क्योंकि पैरेलल एक्सिस आ जाती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ जाएंगे ਉਹਨਾਂ करके। वैसे कोई कुछ नहीं है यूनिट 5 ਵਿੱਚ, अपने वास्ते कुछ नहीं है। पंजाब बोर्ड वाले मस्त चिल रहो, आप अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिखो भाई, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम पे इनर्शिया। सर किन्ने के रिलेशन पढ़ाओगे, कितने ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਬਈ, ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲਾਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, अपने रिलेशन ਨੂੰ नहीं ਭੁੱਲਣਾ, ठीक है। अपना रिलेशन बई एक स्टूडेंट के टीचर वाला रिलेशन ना भूल जाओगे तो तुम सारे जने ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ स्टूडेंट टीचर ਦਾ, ठीक है। लास्ट रिलेशन है बहुत मजेदार रिलेशन है। सब तो ज्यादा अध्याय में नहीं पता एंगुलर मोमेंटम की होता है। लीनियर वेलोसिटी पढ़ ली, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ ली, सेम वो भी लीनियर मोमेंटम पढ़ लो, और एंगुलर मोमेंटम पढ़ लो। एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ L ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ m into r, वैसे तो ਹੁੰਦਾ है p
इंटू आर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले च लीनियर मोमेंटम इंटू आर आ गए। ठीक है जी, हुण देखो एल है एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला है पी इंटू आर, यानी कि लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला की हुंदा है, लीनियर मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला की हुंदा है mv। तो आप एक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का mvr भी पढ़ते हो। लीनियर मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला होता है p इंटू आर, p का फॉर्मूला होता है mv इंटू आर। बस सेम डायग्राम, सब तो पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम m1 v1 इंटू r1 r1। ठीक है जी, सेम डायग्राम, पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम कर दिया m1 v1 r1। दोबारा तो रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा लगा दो। चलो पुट करो इथे तो m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी कदे नहीं बदलती, L2 m2 v2 r2 m2 r2 the square omega, L3 m3 v3 r3 m3 r3 ओमेगा। इतना ही नेट एन कोई मतलब कितनी मर्जी रकम हो सकती है, यानी कि एम एन वी एन आर एन एम एन आर एन ओमेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, बोर हो गया पढ़ाते पढ़ाते तो टॉपिक इतना है, सारे मोमेंटम्स ऐड कर दो क्योंकि अपन की चाहिए टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर नेट मोमेंटम का बराबर है m1 r1 द स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 द स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 द स्क्वायर ओमेगा, फिर अगे सो ऑन। होशियार विद्यार्थी समझ गए। जे भाई तुसी हले भी नहीं समझ पाए ना, कोई फायदा नहीं मेडिकल में मेडिकल च पढ़न दा। चलो यार हुण तुसी दसना की करना। ओहो रिकॉर्डेड है ना परिता, की करिए की करिए की करिए हुण की करना है भाई, जल्दी जल्दी दसो, जल्दी जल्दी दसो, दसो भाई। हले भी नहीं समझे मूर्खो, ओमेगा कॉमन निकल रहा है, एल नेट यानी कि एंगुलर मोमेंटम ओमेगा कॉमन m1 r1 द स्क्वायर प्लस m2 r2 द स्क्वायर प्लस m3 r3 द स्क्वायर ते सो ऑन। बस सिंपल। हुन ओमेगा तो वैसे कॉमन निकल गया, तो मतलब बाहर रहूगा। ये सारा अपना नेट इनर्शिया है, तो इनर्शिया लिखता क्योंकि m1 इंटू आर द स्क्वायर, m ते r द स्क्वायर हुंदा इनर्शिया, तो एंगुलर मोमेंटम का की रिलेशन निकल गया L इक्वल्स टू ओमेगा इनर्शिया। आप किधर रिलेशन काट रहे सी एंगुलर मोमेंटम ते इनर्शिया दा। ठीक है जी, समझ आ गया? कोई बड़ी औखी चीज तो मैं समझाई नहीं। बोलो यूनिट 5 सौखी है कि औखी है, दसो कमेंट च। फिर नाले सारी पीडीएफ्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ग्रुप च मिलणगियां, लिंक डिस्क्रिप्शन च ज्वाइन कर लो। अगली लाइव क्लास की अपडेट ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੋਂ है। 17 तो पहला कोई लाइव क्लास नहीं है क्योंकि मेरा गला खुद दा खराब है, थोड़ी पीडीएफ च मेरा बहुत बिजी होया पिया। हाले हुण भी बस थोड़ा लेक्चर खत्म करके पीडीएफ च लगना है मेरे। तो हुण ਆਪਾਂ अगले टॉपिक करने चलते हैं। अगे ना ਆਪਾਂ कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शियस डिस्कस करने हैं, मतलब ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस ਵਿੱਚ ही है जो ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखे हुए है। डिस्क, डिस्क की ਹੁੰਦਾ है जिहदा मतलब एक सर्कल डिस्क की शेप इदां दी हुंदी है, सारी अंदरों फिल हुंदी है। उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा है mr²/2। सर ये की मूवमेंट ऑफ इनर्शियस है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ। ਰਿੰਗ, ਰਿੰਗ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ mr² ਹੈ। ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਚਲੋ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਚਲੋ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਏ ਰੱਖੀ ਗਏ ਰੱਖੀ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਆਹ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਦਾ
रिंग ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਲੰਡਰ यानी कि डिस्क ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ठीक है जी स्पीयर स्पीयर यानी कि गोला गोला अंदरों फिल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2/5 mr² ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰॉड रॉड एक सिंपल रॉड इदा दी जिंदी लेंथ है अपनी l तक दी लेंथ है इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 याद करने पैने ठीक है जी इनके विच ਅਸੀਂ कुछ समझा नहीं सकते याद करने पैने ठीक है हम रेडियस ऑफ गाइलेशन रह गया ते लीनियर मोमेंटम दा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रह गया चैप्टर समाप्त यूनिट 5 समाप्त 2 लेक्चर आज ठीक है जी चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने को आंदा है रेडियस ऑफ गाइलेशन देखो बहुत इजी चीज है बहुत समझने वाली चीज नहीं है बहुत इजी है ਇਹਦੀ डेफिनेशन मैं बाद में लिखूंगा पहला फार्मूला लिखा ठीक है जी मान लो कोई भी बॉडी है सिंपल जी कोई भी इदा की बॉडी ले लो ठीक है जी इनू इथों आप कटता ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮਾਸ r1 ਹੈ ਇੱਥੋਂ r2 ਹੈ ਇੱਥੋਂ r3 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ r1 r2 r3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ r1 r2 r3 ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਸ ਕੱਟੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ m2 m3 m3 ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਮਾਸਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਖਿਆ ਤਾਂ i1 i2 i3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ mr² ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ r's ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैं इनू k ਨਾਲ डिनोट करता जिन्हों तुसी रेडियस ऑफ गाइलेशन भी बोलते तो mk ਦਾ ਸਕੁਅਰ कंफ्यूज नहीं होना ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ डिस्टेंसेस ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ मैं रेडियस ऑफ मतलब r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ वैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mr² ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ डिस्टेंसेस ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैंने k ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਆ कि k है सारे डिस्टेंस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ k² बोलता बस उन सब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖ ਦੋ m r1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus m r2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus m r3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ r1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus r2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus r3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ m k ਸਕੁਅਰ RHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ n ਨਾਲ RHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ n ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ n ਨਾਲ ਸਰ n ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੋੜਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੇਮ ਮਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋੜੇ ਤਾਂ 1000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ n ਰੱਖਤੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1000 ਰੱਖਤੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ n ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ n ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ n ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਮਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਤਾਂ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ n ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਉਹ ਹੈ n ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ m ਨਾਲ m ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹ n ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ n ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਹੈ ਤਾਂ 10 kg ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ कंफ्यूज नहीं होना 1 मिनट मान लो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਸ 1 kg ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 10 k ਦਾ ਸਕੁਅਰ 10 k ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਤਾਂ 10 ਸੀ
ਆਪਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 10 ਪਾਰਟੀਕल्स ਚ ਸਭ ਦਾ ਮਾਸ 1 kg ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10 kg ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕल्स ਤੋੜਿਆ ਸੀ 10 ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ n ਨੂੰ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m ਹੀ ਆਊਗਾ बोल सकता कि नहीं कि मैं n ਨੂੰ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਸ 1 kg ਹੈ सब ਨੂੰ ऐड ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 kg ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ 10 kg यानी कि m है यानी कि 10 यानी कि 10 है ठीक है जी n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10 ਜੇ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ 1 kg ਸੀ ਜੇ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ यानी कि मैं इतना बोल सकता m into n यानी m into n की होगा m into n की होगा ਤੁਹਾਡਾ m into n की होगा m होगा यानी कि m k square m into n की है ਤੁਹਾਡਾ m into r1 the square plus r2 the square plus r3 the square and so on जिन्ना नहीं समझ आया दोबारा बैक जाके सुन लो प्लीज इधर ना करो हुन तुसी मास नाल मास कैंसिल करता ਤਾਂ k square बराबर आ गया r1 the square plus r2 the square plus r3 the square बराबर n इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर r1 the square plus r2 the square plus r3 the square so on ਤੇ upon n ਤੇ radius of gyration ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਿਓ radius of gyration ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਵੇਂ root mean square ਕੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ root mean square root mean square ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਤਾਂ ਮੀਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੀਨ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ gyration ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਦਾ of a particle या फिर body ठीक है जी आर्म लेंथ सर जी और रेडियस इसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਆਰਮ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਅ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ रेडियस ऑफ gyration समझ आ गया बस हम लास्ट थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रह गया चैप्टर खत्म हो चुका लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो देखो लास्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ एक्सटर्नल टॉर्क 0 है एक्सटर्नल टॉर्क 0 है सर जी टॉर्क मतलब बाहरों कोई टॉर्क नहीं लग रही किसी बॉडी पे सपोज मैं आ मेरे उत्ते कोई बाहरों एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो जेड़ा अपना एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाता है जेड़ा अपना एंगुलर मोमेंटम है
ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੋਲਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਖਤਮ ਸਰ ਜੀ ਟੌਪਿਕ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟੌਰਕ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਟੌਰਕ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ mv/r। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ p × r ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, dmvr/dt। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ d ਤੇ r ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। मास ਤੇ रेडियस बाहर dv/dt रह गया। कोई बच्चा दस दो dv/dt की ਹੁੰਦਾ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ma × r/ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, dt ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ dv/dt ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ × ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ। मास × ये सारा कुछ L के बराबर भी तो है, ये सारा कुछ L के बराबर है। ठीक है जी, मास × एक्सेलरेशन की होता है फोर्स × r, L के बराबर आ गया। फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना टॉर्क होता है, तो टॉर्क बराबर आ गया dl/dt। सर जी की कर रहे हो यार, मैं तुहानू बोलिया सी कि डिफरेंशिएट दोनों साइड करने, तो इत्थे dl/dt आऊगा, इथे लिख दो dl/dt, इथे लिख लो dl/dt, dl/dt। ठीक है जी। हुन टॉर्क तो 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 है, तो 0 बराबर dl/dt। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जेडे बच्चे ने मेरे तो पढ़े, 0 किसी भी चीज से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कदों 0 हुंदा है, किसी चीज से डिफरेंशिएट करिए तो अपन 0 मिले तो की हुंदा है, मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 0 ਆਇਆ ਆंसर। ਟਾਰਕ 0 ਸੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ कि जेड़ा अपना टॉर्क जदों भी 0 है तो किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, अब देख लो एप्लीकेशंस भी है, एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यार देखो एप्लीकेशंस इतना मान लो हुन अपन ने प्रूफ की कीता है कि mv/r² भी आउगा, mv/r ਦਾ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ mvr ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ mvr ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, mvr ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, मोमेंटम कांस्टेंट है, mvr कांस्टेंट है। v ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, v ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਮੇਗਾ r²। v ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ r ਓਮੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ m ਓਮੇਗਾ r², ਤਾਂ m ਓਮੇਗਾ r² ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। m ਤੇ r² ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਓਮੇਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਲੀਨੀਅਰ मोमेंटम कांस्टेंट ਸੀ, mvr कांस्टेंट है, इसका मतलब v की जगह पे मैं r ओमेगा लिखता, आपने को चीज बन गई mr² की होता है i यानी कि इनर्शिया ओमेगा ऐसी। ठीक है जी। हुन मेन गल इतना है, तुसी कदे आइस स्केटिंग देखी, आइस स्केटिंग की होता है, या फिर वो बैली डांस देख लो, बैली डांस या वही ले लो यार एग्जांपल, मान लो मैं घूम रहा, जे तां तुसी मैं हाथ खोल के घूमूंगा फिर तो मैं इन्ना तेज घूम नहीं पाऊंगा, जे मैं अपने हाथ
आए कर ला मतलब अंदर नूं कर ला तां मैं तेज घूमूंगा। खुद एक्सपीरियंस करके देखो, आए घूम के देखो ते आए घूम के देखो तो तुसीं देखोगे आए घूमोगे ना ज़्यादा तेज ना घूम रहे हो, आए घूम रहे हो तो घट तेज ना। इहनूं आइस स्केटिंग भी बोलदे। आइस स्केटिंग च की हुंदा है लोग मतलब बैली डांस टाइप नहीं हुंदा कि इदां पता नहीं किवें जे करदे हुंदे बैली डांस ते आए जे घूमदे हुंदे बैली डांस टाइप, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, वो भी एक एप्लीकेशन है। बैली डांस लिखांगे, आइस स्केटिंग लिखांगे। आइस स्केटिंग की एक एप्लीकेशन है इस दी किवें सर जी देखो बैली डांस विच की कर रहे हो तुसीं सुकड़ गए मतलब इदां मान लो अपने हत्थां नूं कोले ले, हत्थां नूं कोले लेके आउण दा मतलब तुसीं अपना इनर्शिया घटाता। हत्थां नूं कोले लेके आउण दा मतलब अपना इनर्शिया घटाता। किवें सर जी इनर्शिया की हुंदा है, इनर्शिया हुंदा है mr²। r की है कितना डिस्टेंस है, इहनूं मैं कोले ले आया हत्थां नूं कोले ले आया, कोले लेके आने का मतलब है कि मैं अपना रेडियस घटाता। रेडियस घटाने का मतलब क्या है, इनर्शिया घट गया। अपने हत्थां नूं मैं कोले लेके आया ना, कोले लेके आने का मतलब इनर्शिया घट गया। जे इनर्शिया घट गया तो ओमेगा ਵਧੂਗਾ, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ਜਦੋਂ मैं अपने हत्थां नूं कोले ले आया तो मैं ज्यादा तेज नाल क्यों घूम रहा, क्योंकि ओमेगा बढ़ गया। तो ये भी की एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन है। इत्थों ही आप आ चीज पे पहुंचे हैं तो मैं बोल सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दी पहली एप्लीकेशन है आइस स्केटिंग। ठीक है जी। फिर वो फ्लिपर्स देखे जो ऊपर ऊपर बहुत ऊपरले पॉइंट्स तो छाल मारते स्विमिंग पूल्स च, वो छाल किवें मारते, अपनी बॉडी में इधर रोल कर लेंगे, मेरे कोई चीज नहीं लाइक अपनी बॉडी ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ मतलब समझ के ना इमेजिन यार कि वो गोल जा कर लेंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ अपना रेडियस घटा रहे, रेडियस घटा रहे तो की घट रहा है, आई घट रहे, आई घट रहा तो की बढ़ गया ओमेगा, ओमेगा बढ़ गया। एक आदि एप्लीकेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इन्हों आप फ्लिप बोल सकते हैं, फ्लिप। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स देखिए प्लैनेट्स ना जो अपने कोले आते, जो कोई भी प्लैनेट कोले कोले आते हैं तो प्लैनेट्स कोले आ रहे की घट गया रेडियस। जे प्लैनेट्स कोले आ जाएंगे तो की घटूगा रेडियस, रेडियस घटूगा तो की घटूगा इनर्शिया, इनर्शिया घटूगा तो की बढ़ जाऊगा ओमेगा, ओमेगा बढ़ गया तो ये भी की होगा एक एप्लीकेशन होगी तो प्लैनेट्स। ठीक है जी। एक और चीज आप एक तीन इक्वेशन पढ़ते ना, v² - u² बराबर 2s, v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80²। तो इन्हां तीन इक्वेशंस विच रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे तो v ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ओमेगा, v ਨੂੰ ओमेगा ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, u ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ओमेगा नॉट ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी। s ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ थीटा ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ a ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अल्फा ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ v² - u² ਦਾ ओमेगा² - ओमेगा नॉट ਦਾ ਸਕੁਅਰ बराबर है 2। एंगुलर ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ एंगुलर एक्सेलरेशन लिखांगे, s ਨੂੰ थीटा, आ एक न्यू फार्मूला बन गया। v इक्वल्स टू u प्लस 80 की बनूंगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, केड़ा रह गया s इक्वल्स टू ut, तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस हाफ 80 इनटू अल्फा इनटू t स्क्वायर। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੀਪਲੇਸ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ 5 ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੀ ਪੜਾਉਂਗਾ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। पीडीएफ्स बहुत सिरा बन रही है, मैं बहुत वधिया पीडीएफ बन रही है, मज़ा आ जू जेडे बच्चे खरीदेंगे। ईवन मैं तुहानू 2 पीडीएफ्स मैं फ्री भी देनी है, मतलब एक चैप्टर ग्रेविटेशन ते एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उन्होंने दोनों की फ्री पीडीएफ्स है। ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो च, गला बहुत खराब है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन तो पहला सारे नोट्स वगैरह व्हाट्सएप टेलीग्राम च मैं अपलोड कर देनी, तो उत्थों ले लियो, तो हुण जा सकते हो। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।